नमस्कार भाई दोस्तों। सही मायने में डंका बजना पता किसे कहते हैं? जो सिखों का बज रहा है। इटली की प्रधानमंत्री है ना मेलोनी, मेलोनी ने भी ऐलान किया है इसी महीने सिखों के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। और ट्रंप साहब के कहने ही क्या है जो सिखों के लिए करते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ क्या क्या है खुद सुनो। इस्लामी मुल्क विच पुलिस कमिश्नर ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੰਕਾਤਵਾ ਬਾਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ टू सर्व इन ऑल 3 आर्म फोर्सेस। चलो आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री साहब ब्रिटेन गए हैं। ब्रिटेन में सिखों की आबादी है 5,35,000 कुछ है। और वहां पर चौथी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है पंजाबी। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर चौथी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा पंजाबी। अच्छा, जो मेलोनी ने ऐलान किया है वहां पर तो सभी सिखों को पहुंचना चाहिए भाई। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਵਾਏ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲਟਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫੋਰਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 9 ਵਜੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ जरूर से जरूर हिस्सा लें, क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री है, इटली के अलग अलग शहरों के मेयर हैं, वो भी आएंगे वहाँ पर। इटली एहसान मानता है कि सिखों ने हमारे को आज़ादी दिलवाई। इटली, मेलोनी वाला इटली। और भी बहुत से देश हैं, फिजी है, और भी बहुत से देश हैं जो एहसान मानते हैं कि सिखों ने हमारे को आज़ादी दिलवाई। लेकिन एक देश ऐसा है जिसमें 90% से ज़्यादा कुर्बानियाँ सिखों ने दी, सिखों ने आज़ादी दिलवाई, लेकिन आज भी इनको जराइम पेशा, आतंकवादी, पतंगवादी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। और वो ये देश है जहाँ पे हम रहते हैं। इस देश की बात कर रहे हैं। अगर सिखों का देश होता, संयुक्त पंजाब होता, तो क्या ये सब होता? नहीं होता। दूसरी तरफ ट्रंप का बॉडीगार्ड एक सिख रहा है। क्यों भरोसा है सिखों के ऊपर इतना ट्रंप को? कभी सोचा आपने? और दूसरे देशों में क्यों भरोसा करते हैं सिखों के ऊपर इतना? क्या स्पेन, क्या जापान, क्या चाइना, आपको अलग अलग चीज़ें बताई गई थी? नहीं बताया हो तो बताओ। सभी देशों में भरोसा किया जाता है, छोड़ के कि यहाँ पे जो ये है ना नफरती चिंटू गोबर भगत, सिर्फ इनके कारण, इन गोबर भगतों के कारण ये सब होता है। नहीं तो ना, अगर आप सिखों का सही मायने में इतिहास जानोगे तो आप ना हैरान रह जाओगे। और जो 8वीं क्लास में इतिहास पढ़ाया जा रहा है भाई, वो सिखों क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इसका मतलब इतिहास को भी इतिहास बनाया जा रहा है। समय रहते अपनी आंखें खोल लो, आंखें खोल लो। दूसरे देशों के अंदर ओरिजिनल इतिहास दिखाया जाता है सिखों का, और यहाँ पे इतिहास को भी इतिहास बनाने के लिए 8वीं क्लास के अंदर इतिहास लागू किया गया है, ताकि ना यहाँ पे दिखाया जाए। आज तक पढ़ाया गया सिकंदर महान। कौन था भाई सिकंदर? सिकंदर कौन था? एक आक्रमणकारी था, लेकिन उसको महान पढ़ाया गया। अकबर महान, वाह रे क्या पढ़ाई पढ़ी है हम लोगों ने, है ना।
क्या पढ़ाई पढ़ी? ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, इतिहास को मितिहास बनाया जाएगा। मितिहास है, देख लेना आप। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है, दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, सिखों को क्या सम्मान मिलता है। स्पेन के वो आपको वीडियो दिखाए थे ना, लेडीज रो रही थी कि अगर आप चले गए तो हमारे देश का क्या होगा। सिखों के गले लगकर रो रही थी, क्योंकि ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं। और यहां तो एक पत्ते को हिलाओगे ना, पता नहीं कितने बेईमान निकल के गिरेंगे, कितने बेईमान गिरेंगे निकल के। हालत ये हो चुकी है। यहां पे दिखाया कुछ जा रहा है, सुनाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, और हकीकत में कुछ और है। हकीकत में कुछ और है। बस थोड़ा सा कहीं पर कुछ हो जाओ, सिखों ने किया होगा, फलाने ने किया होगा, ढिमकाने ने किया होगा, या अलग अलग देशों में जो चिंटू पहुंचे हुए हैं और जो इन चिंटुओं की पहचान की जा रही है। जो ट्रंप बोल रहा है कि भारतीयों को नौकरी नहीं दी जाएगी, सिखों को नौकरी दी जाएगी, क्यों बोल रहा है वो इस बात को? कभी सोचा है? हमारे यहाँ कितना बड़ा फेंकू ना था, वो इतनी बड़ी फेंक देता। अमेरिका जैसे देश कागजों पे चुनाव करवाते हैं, अनपढ़ देश है वो अनपढ़ देश है, तो फिर उनमें नौकरी करने क्यों जाते हो? पढ़े लिखे जो ईवीएम पर चुनाव करवाते हैं, क्यों नहीं करवाता अमेरिका ईवीएम पर चुनाव? उसको पता है जिसके पास पैसा होगा वो ईवीएम को हैक कर लेगा, वही हैक कर लेगा, दूसरा देखता रह जाएगा। खड़े रहना, वोट डालो मत डालो, आपका वोट डल जाता है। जीता जागता सबूत इस बात का। मैं वोट डालने भी नहीं गया और मेरा वोट डल गया था। नहीं गया मैं डालने के लिए वोट को, लेकिन मेरा वोट डला था। और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए तुम्हारे को? क्या सोच रहे हो तुम? ईवीएम ऐसे ही सेट की जाती है, ईवीएम में सेटिंग होती है, कोई मना नहीं करता, लेकिन बाद में रोते हैं, चुनाव के बाद रोते हैं, पहले कोई नहीं बोलता। सच्चाई ये भी है, ईवीएम का मुद्दा राजनीतिक दलों का है, वो उठाओ या मत उठाओ, उनके ऊपर है वो। जनता का काम है अपना जूत खाना, चलते रहना। इंडिया के अंदर, विशेष तौर पर इंडिया के अंदर जूत खाते रहो, चलते रहो, खाते रहो, चलते रहो। जूतों की संख्या कम हो जाए तो फिर चुन लो। मैं तो ये कह रहा हूं, अब की बार है ना, पंजाब के लिए विशेष टारगेट बना दिया है बीजेपी ने, विशेष टारगेट। बोले अब की बार पंजाब में सरकार बना के दिखाएंगे। अगर ये इतने दावे से बोल रहे हैं ना, तो गड़बड़ होगी गड़बड़। बोले हम पूरी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पंजाब की जनता चाहती है बीजेपी को। पंजाब की जनता बीजेपी को चाहती है भाई, ये तो बड़े कमाल की न्यूज सुनी हमने। हम नहीं करी ये चीज, बीजेपी बोल रही है कि अब की बार बीजेपी आएगी पंजाब में। और ये जहां पर बोल देते हैं ना, दावे के साथ बोलते हैं, वहां पर ये गड़बड़ करते ही करते हैं ये गड़बड़ है। इन्होंने दिल्ली में बोला था, लोगों ने जोर लगा लिया, नहीं आने देगा केजरीवाल। केजरीवाल को मारा बाई फोल देके, केजरीवाल पंजाब में जाके गिरा। अब ये अगर बोल रहे हैं कि पंजाब में हम सरकार बनाएंगे, तो इसका मतलब केजरीवाल ने इनकी जमीन तैयार कर दी है। अपने क्षेत्रीय दलों को मजबूत कर लो, समय रहते, बाद में समय नहीं मिलेगा। कहीं सोच रहे हो चुनाव 2027 में, इन लोगों ने तैयारी अभी कर दी है, अभी से तैयारी कर दी है। और बुलेट प्रूफ तैयारी है, नहीं कि ऐसे नहीं। चाहे वो ईवीएम को लेके हो या छोटे से छोटे, उसको मेंबर से लेके, सरपंच से लेके, चाहे इनको कोई भी पकड़ना है, ये सरकार बनाते हैं। फिर बिकाऊ हर एक जगह पे मिल जाते हैं, ये मत समझना। पगों में सिर्फ फंसा के बहुत से बिकाऊ बैठे हुए हैं, बहुत सारे बिकाऊ हैं जो बिक जाते हैं। सच्चाई है ये, कड़वी भले ही है, लेकिन ये सच्चाई है। अपने क्षेत्रीय दल मजबूत कर लेना, ठीक है ना। कहीं ये इन्होंने बोल दिया बादल आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो मत आने, तो हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे और 117 की 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कमाल की बात है भाई, इतने दावे से बोल रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।